वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ रिफ्रैक्शन। और उसको समझने के लिए पहले हम रिफ्रैक्शन को फील करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी से। इस कंटेनर में एक कॉइन रखा है और आप देख रहे हो कि कॉइन आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन जब इस कंटेनर को हम वाटर से फिल कर देंगे तो वो कॉइन विजिबल हो जाएगा। हम ऑब्लिकली कॉइन को देख रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको गौर करना। साइड से देख रहे हैं। अब इसमें मैं वाटर फिल करने जा रही हूँ और आप देखना कि कैसे कॉइन अपीयर हो जाता है। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली what we are going to see. I think you have started seeing the coin, and the coin is visible here, and this is visible because of the refraction. तो ये एक एक्टिविटी है और एक दूसरी एक्टिविटी से हम रिफ्रैक्शन के एक दूसरे ही अंदाज को देखते हैं। Now this is children a straight stick, and when placed partially immersed in the liquid, observe it is appearing bent. You can see that this is a straight stick, but when it is placed in water such that it is partially immersed and it is observed obliquely from this side, then it appears bent because of refraction. This part, the rays starting from this part are going to eye straight, but this part's rays, which are immersed part, are first traveling through the water and then moving in air. So the rays are bending at the surface of water. When they come from water to air, they suffer refraction, and that is why we don't see the actual stick. We observe the image of the actual stick, which appears like this, and the total effect is that it appears bent. So this is again example of refraction. Observe this flame. This flame is inverted if you observe the flame through the convex lens. लेकिन अगर आप इसको सीधे देखें तो फ्लेम स्ट्रेट है, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन दिस फ्लेम अपीयर्स इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स लेंस उस फ्लेम की इन्वर्टेड इमेज दिखा रहा है और आपको वो फ्लेम इन्वर्टेड, उल्टी दिखाई दे रही है। तो ये भी रिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है। Convex lens produces inverted image of the flame. और साथ में ये भी देखो कि जो inverted image है वो enlarged है। Actual जो flame है वो उसका साइज़ छोटा है, लेकिन जब हम convex lens के थ्रू देख रहे हैं तो एक तो हमको inverted image दिख रही है और दूसरा उसका बड़ा साइज़ दिख रहा है। And if I observe this flame, अगर हम इस फ्लेम को एक कॉनकेव लेंस के थ्रू देखें, कॉनकेव लेंस इज़ थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द पेरिफेरी, तो ये फ्लेम हमको इरेक्ट भी दिख रही है और छोटी भी है, जबकि एक्चुअल फ्लेम साइज में बड़ी है। लेकिन थ्रू कॉनकेव लेंस ये फ्लेम हमको छोटी और इरेक्ट दिख रही है। तो ये कॉनकेव लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन से जब इमेज बनती है तो अलग तरीके से बनी, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू बनी तो अलग तरीके से बनी। तो रिफ्रैक्शन के इतने सारे एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व करने के बाद अब हम ऑन प्रिंसिपल समझते हैं कि रिफ्रैक्शन है क्या। ऑब्जर्व दिस लेज़र बीम, इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन एयर। लेकिन जब हम इसे एक ग्लास स्लैब से पास कराते हैं तो देखो लाइट ग्लास के अंदर बेंड हो जाती है और जब हवा में वापस निकलती है तो एक बार फिर से बेंड हो रही है। इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। चिल्ड्रन, वी हैव जस्ट नाउ सीन दैट व्हेन अ लाइट रे, वी हैव सीन इट थ्रू लेजर बीम, व्हेन अ लाइट रे falls on a medium interface from air to say glass medium. The surface of the glass is called medium interface, and light ray when incidents on the surface of the glass, a part of it is reflected and a part of it transmits through the glass. But when the light ray passes from air to glass, it changes its path. It was moving in this direction, but in glass its direction changes and it actually goes in this direction. This angle between the incident ray's direction
and this refracted ray's direction is called angle of deviation. So incident ray, angle made by incident ray from the normal is called angle of incidence. Angle made by the refracted ray from normal is called angle of refraction, and the direction of incident ray and direction of refracted ray, angle between these two is called angle of deviation. और रिफ्रैक्शन क्या है, एक सिंपल सरल भाषा में कहें तो इंसिडेंट रे जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, मूव करती है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. तो हम रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन को नोट करेंगे. व्हेन लाइट incidents on the surface of any medium, part of it reflects back to the first medium, part of it transmits through that medium too. So when light travels from one medium to other, it changes its path. This phenomena is called refraction. Dutch scientist Snell has studied refraction phenomena और उन्होंने 2 लॉज दिए बेटा. कौन कौन से? उन्होंने कहा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. और हम देखते हैं कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है. ये तीनों इस पेपर के प्लेन पर हैं. तो फर्स्ट लॉ तो ईजिली अंडरस्टैंड करने वाला है. Second law says that sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is a constant. This ratio is a constant, and this constant is called refractive index of second medium with respect to first medium. तो चलो अब समझते हैं कि sine of angle of incidence and sine of angle of refraction क्या है. ये है right angle triangle और इसमें हम इस साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे अगर ये एंगल थीटा हम कंसीडर कर रहे हैं तो. ये बेस है और ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो साइन ऑफ थीटा इन ट्रिग्नोमेट्रिकल मैथमेटिक्स इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कॉस ऑफ थीटा इज डिफाइंड एज बेस साइज ऑफ बेस upon size of hypotenuse, and tan of theta is defined as size of perpendicular upon size of base. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं एंगल के और हम इन्हें इन डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं. तो अब इनको हम वहाँ पर जहाँ पर हम सेकेंड लॉ में यूज़ कर रहे हैं वहाँ हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन which is defined as perpendicular upon hypotenuse, ये हम यूज़ कर रहे हैं. इसके अलावा ध्यान दो, ये जो कांस्टेंट है जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं, इंडेक्स का मतलब नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब वो नंबर जो हमें ये बता रहा है कि एक मीडियम जिसे हम मीडियम 1 कह रहे हैं जैसे एयर, और दूसरा मीडियम जिसे हम सेकेंड मीडियम जैसे ग्लास. तो लेज़र बीम जब एयर से ग्लास में जा रही है तो आप देख रहे हो कि वो बेंड हो रही है, वो अपने रास्ते को चेंज कर रही है. तो कितना किसी मीडियम ने रे को बेंड कर दिया, ये इंडेक्स और नंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है. जो ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस है, आई एम नॉट सेइंग डेंस, आई एम सेइंग ऑप्टिकली डेंस, मतलब जो जितना ज़्यादा बेंड करेगा रे को उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा. इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1. जैसे इस केस में सेकंड मीडियम ग्लास है और फर्स्ट मीडियम एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यानी ग्लास कितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस है एयर के कंपैरिजन में, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है.
और ये कैसे डिफाइन हुआ? साइन ऑफ दिस एंगल अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल। बात क्लियर हो रही है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। तो अपने फर्स्ट क्लास में हमने ये समझा कि रिफ्रैक्शन क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है।